Are you sending out hundreds of resumes but not getting any interview calls? Are your cold emails getting ghosted? And are you still confused about how to create a resume or deck that actually gets you noticed? It's not you, it's the strategy. And this video might be the game changer. So let's begin, and we'll be covering everything that you need to know for building a job ready profile. But इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देती हूँ कुछ अपने बारे में. So I am currently working as a brand manager, and जो मेरा current role है, I have tapped this off campus. Before that, I have also worked with Mama Earth. That role also I cracked off campus after my undergraduate college. So I have a fairly good idea of how the process works and how you can approach to stand out amongst a wide pool of applicants. सो वो क्या क्या छोटे छोटे सीक्रेट्स और स्ट्रैटेजीज हैं जो मेरे लिए वर्क करें, एंड यू कैन ऑल्सो यूज देम टू स्टैंड आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स. Those I am going to cover in today's videos. So I'm sure you might not have come across all this stuff that I'm going to share. So stay tuned till the end. So let's begin. So first of all, resume basics. I will be taking this up in a separate video. For now, let's just come to the advanced tactics of resume. No one will tell you this strategy. So क्या होता है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, Pidilite, HUL, PNGs of the world, they go to tier 1 campuses for hiring students. What about the students who are coming from tier 2, tier 3 colleges and who also aspire to work in these big firms? उनके लिए क्या? They have to take the off-campus route to these companies, and my friend, off-campus route is not easy because हजारों एप्लीकेशंस होती हैं, एंड आप रेज्यूमे चाहे कितना ही अच्छा बना लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड आउट टू गेट अ शॉर्ट लिस्ट नो मैटर व्हाट कीवर्ड्स यू पुट इन योर रेज्यूमे. सो लेट्स बिगिन विद सम ऑफ द टैक्टिक्स. अगर हमें स्टैंड आउट करना है in the pool of applicants, we have to take it to the next level. हमें next level operate करना पड़ेगा. Basic resume से काम नहीं चलेगा. We have to do something extra. We have to deliver something extra. So जैसे मैं आपको एक case study बताती हूँ. This is an example of my senior. So he wanted to get into HUL, and HUL हमारे campus पे नहीं आती थी hire करने के लिए. So what he did, instead of printing a basic resume, उन्होंने case analysis किया, HUL की एक problem पकड़ी, he connected with people, he understood what are the current problems that HUL is facing right now, उस पे एक पूरा case analysis बनाया, and जो उनका resume था, he printed it in the form of Horlicks box, है ना, कैडबरी का जो बॉक्स आता है, जैसे कैडबरी सेलिब्रेशन का डब्बा आता है, उन्होंने उस डब्बे पे अपना पूरा रेज्यूमे आगे पीछे प्रिंट करा के, स्किल्स, व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, उन्होंने रेज्यूमे प्रिंट कराया, एंड ही सेंट इट टू द हायरिंग मैनेजर. ही सेंट इट टू whichever department he wanted to work in. So I have attached a link also for this reel. You should go and definitely check this out because ये एक बहुत ही नॉन कन्वेंशनल तरीका है रिक्रूटर्स तक रीच आउट करने का. So जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो, ये सेंसोडाइन का टूथपेस्ट है. He has, instead of सेंसोडाइन, उन्होंने अपना नाम एम्बेड किया है. At the back of the pack, he has embedded his skills, his photos, his skills, his work, portfolio, and attached with it is a case analysis. So case analysis on the burning problem. So this is such a cool way of standing out in a pool of thousands applicants, and डायरेक्टली आपका रेज्यूमे सही जगह पे पहुंच रहा है. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा या सही पर्सन के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है. सो जस्ट थिंक ऑफ इट, जस्ट लाइक पॉज एंड कंपेयर इट विद अ ट्रेडिशनल रेज्यूमे डॉक्यूमेंट जो 1 पेज बोरिंग, लाइक डल कलर्स एंड ऑल दैट. सो अगर मैं अपना रेज्यूमे किसी डब्बे पे प्रिंट करा के भेजती हूँ, एंड नॉट जस्ट दिस, I'll tell you one more trick which will add more flavors and which will take it to another level. अब आपने रेज्यूमे प्रिंट करा लिया, ठीक है, लेट्स से आपकी FMCG कंपनी आप टारगेट कर रहे हो, आप स्किन केयर के साथ भी ये कर सकते हो, आप कंजम्पशन फूड्स में भी ये कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ में, दिस इज वन वे विच यू कैन अप्लाई. अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप गूगल, यू गो टू गूगल, जस्ट सर्च इफ यू वांट टू, लेट्स से यू वांट टू क्रैक द रोल ऑफ अ मार्केटर. HUL में जाके देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड कौन है, ठीक है, वहाँ से आपको उस बंदे का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. HUL का एड्रेस निकालो, एंड जो भी आपका ये डेक है इसको अच्छे से पैक करो, और उस जस्ट गेट कॉन्फिडेंशियल टैग प्रिंटेड, और आप उस पैकेज पे कॉन्फिडेंशियल टैग लगा दो. यू राइट द नेम ऑफ दैट हायरिंग मैनेजर, लेट्स से टू नेहा शर्मा, मैनेजर मार्केटिंग HUL, कॉन्फिडेंशियल लगा लो, एंड यू पोस्ट इट. आपका रेज्यूमे सीधा हायरिंग मैनेजर के पास डिलीवर होगा. आप समझ रहे हो, कोई शॉर्टलिस्ट नहीं, कोई HR के थ्रू आपको रीच आउट नहीं करना, जस्ट यू रीच आउट टू द बिगेस्ट अथॉरिटी. You just print your deck, send it to the
main operator and to the marketing head, he or she will directly review what you have to present. And अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, if you are a worthy candidate, you will definitely get a call. कोई HRs नहीं होंगे बीच में, directly one on one with the marketing person who is ultimately going to hire you. So this is such a cool strategy compared to हमारा एक नॉर्मल रेज्यूमे जिसमें हम ATS के थ्रू देखते रहेंगे ATS स्कोर अच्छा है या नहीं अच्छा है, फिर किसको रीच आउट करें, हाउ शुड वी गो अबाउट इट. सो आई थिंक दैट वन ऑफ द कूलेस्ट वेज टू गेट in touch with your hiring manager or with your marketing, whatever department you want to work in. So I think this is our first tactic, and you should definitely check out this reel, this Instagram channel, and we can connect to discuss more about this. So this was the first tactic that you can use to stand out from the pool of candidates. Let's move on to the second thing. यार एक बहुत चीज़ होती है, I think एक ये जो term है हमारी networking, काफ़ी मिसअंडरस्टूड है, काफ़ी सारे अप्रीहेंशंस होते हैं यार. नेटवर्किंग बहुत सारे लोग ज्ञान देते रहते हैं, हैक्स क्या होते हैं नेटवर्किंग, व्हाट इज़ द राइट वे टू नेटवर्क. वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट, बट एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ के बारे में मैं आज बात करूंगी, विच इज़ लेवरेजिंग द नेटवर्किंग इवेंट्स. देखो हमारे शहर में बहुत सारी इवेंट्स होते रहते हैं, गूगल, एक्सेंचर, ऑल दीज IBM, ऑल दीज बिग कंपनीज, दे कीप ऑन ऑर्गेनाइजिंग दीज नेटवर्किंग इवेंट्स विच एनी वन कैन गो एंड पार्टिसिपेट. आई हैव गोन टू द गूगल ऑफिस माई सेल्फ 2-3 times. सो अब इन इवेंट्स का आप मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठा सकते हो. सो लाइक दिस इज जस्ट अ थिंग लाइक हाउ अबाउट अ QR ऑन योर T-shirt. लाइक जस्ट अ वाइल्ड आइडिया. इमेजिन अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो एंड यू जस्ट गेट अ QR प्रिंटेड एंड राइट सम वेरी क्वर्की लाइन और समथिंग विच इंस्टेंटली ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ अदर्स, एंड यू हैव अ T-shirt, you have a QR प्रिंटेड ऑन इट. कोई भी उसको अगर स्कैन करेगा, यू कैन रीडायरेक्ट हिम टू योर resume. You can redirect him or her to your portfolio. You can redirect him or her to your website, and you can have a very clear CTA here that I am a graphic designer and I'm looking for some opportunities. Check out my portfolio here. The person can scan it, and he or she likes the work. It's a converted call, right? It's the easiest way. Networking events are the best platform to break hierarchy. Because आप डायरेक्टली लीडर्स के टच में आ रहे हो, यू आर एबल टू लाइक यू डायरेक्टली हैव दैट प्लेटफॉर्म टू पिच हिम और हर one on one. So I think this is one of the ways in which you can leverage, and you should definitely leverage. So मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ. I went to NAS Summit, which is Asia's #1 creators event, and वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ मुझे कनेक्ट करना था. And you get like very few seconds to shake hands, to exchange things. So एक तरीका है आप ट्रेडिशनल बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करा लो. आई थिंकिंग फ्रॉम द लेंस ऑफ स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक वी कैन डू दैट. सो मैंने क्या किया था, आई गॉट दीज बैचेस प्रिंटेड, एंड उसके ऊपर मेरे को इंस्टाग्राम, मैंने अपना QR प्रिंट करा लिया था. एंड हूसोएवर केम इन टच विद मी, मैंने उसको दिखाया कि लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम. इफ यू हैव समथिंग टू ऑफर मी, और इफ देयर इज some business that we can talk about, or any entrepreneurial venture we want to discuss, let's connect on Instagram. Or I could have directed him to my LinkedIn, I could have directed him or her to my website, to my resume, to my portfolio. So this is again a very crazy way of connecting out with people and directly putting it out there what you have to offer. So I think you should definitely leverage out these networking events and कुछ अलग बन के जाओ. And when you do something like this, you stand out from the crowd. So when I actually took the batches, everybody was like, oh my god, this is something creative, this is something unique. And that helps you stand out. And then second point will be, whatever you have to redirect, अपना एक killer सा portfolio बनाओ जिसकी हम आगे बात करेंगे. Killer सा कुछ भी, it could be a video also, pitching yourself. So just take note of this hack, and next time you're going to a networking event, you can try this out. Now beyond the boring resume, यार जो इतने मैंने बहुत सारे लाइक आई बीन रीचिंग आउट. मैंने अंडरग्रेड के बाद भी ऑफ कैंपस रोल टैप किया था, एंड मेरे जो पोस्ट ग्रेड थी MBA, उसके बाद भी आई गॉट एन ऑफर ऑन कैंपस, बट मुझे एक बेटर रोल चाहिए था. सो आई अगेन टुक दी ऑफ कैंपस वे. एंड स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, आई सेंट आउट अ सिंपल रेज्यूमे एंड नथिंग, लाइक इट डिड नॉट वर्क आउट. I was like कि यार मैंने इतना अच्छा सब्जेक्ट लाइन क्रैक कर ली है, आई हैव क्रैक a good body also, and then too I'm not getting reply from the people I'm reaching out to. So that's when I realized कि यार इस एज में बोरिंग रेज्यूमे तो
काम नहीं करेगा, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स. लेट्स से अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहे हो या आप किसी और टियर 2 कैंपस से आ रहे हो, सो यू हैव टू गो बियॉन्ड द बोरिंग रेज्यूमे. एंड अटेंशन स्पैन्स इतने कम हो गए हैं कि 30 सेकेंड में अगर उसने अटेंशन ग्रैब कर लिया, एंड 30 सेकेंड ऑल्सो आई एम सेइंग लाइक बहुत ज़्यादा है 30 सेकेंड्स. सो योर रेज्यूमे हैज़ टू स्टैंड आउट. बट इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन आवर रेज्यूमे, क्या हम रेज्यूमे की जगह एक अपनी वीडियो बना के भेज सकते हैं? क्या मैं आपको 30 सेकेंड में अपने आप को पिच कर सकती हूँ हु शगुन इज एंड व्हाई एम आई वर्दी ऑफ वर्किंग ऑन XYZ प्रोजेक्ट इन XYZ कंपनी? So this is again a good way which has worked for me and you guys can try it out. So आप क्या कर सकते हो, एक 60 to 90 सेकेंड की वीडियो बना सकते हो. एंड इसकी हैक यही है, स्टार्टिंग के जो 3 सेकेंड्स होते हैं ना, व्हाट वी कॉल हुक, योर हुक शुड बी सॉलिड. इट शुड बी वेरी सॉलिड. कि अगर कोई बंदा आपकी स्टार्टिंग की 10 सेकेंड या 3 सेकेंड आपके वीडियो में वो देख रहा है, वो बंदा रुक जाए कि यार आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करो कि यार ये तो कुछ क्रेजी बंदा लग रहा है, ये मतलब ही और शी इज गोइंग टू डू समथिंग क्रेजी. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू टेल योर स्टोरी बताओ. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बहुत मैकेनिकल कर देते हैं इस प्रोसेस को. सो जस्ट वेरी मतलब बहुत स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना है आपको. एक अच्छी सी स्टोरी लाइन बनानी है, बेसिस वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम एंड क्या आप चाहते हो, क्या आपके गोल्स हैं, उन सबको माइंड में रख के यू हैव टू क्राफ्ट अ वेरी ब्यूटिफुल नैरेटिव एंड पिच इट एंड सेंड इट टू पीपल इंस्टेड ऑफ दैट बोरिंग LinkedIn text or that boring email. And you can like ask people to forward it to the right persons also. एंड आपका काम इजी करने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर भी बनाया है कि आप उस वीडियो में क्या स्ट्रक्चर फॉलो करोगे. सो सबसे पहले आएगा आपका हुक. 3 सेकेंड में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो विच इज़ वेरी यूनिक टू योर सेल्फ एंड विच विल स्टॉप मी कि यार I need to watch the entire video. There is something great coming up and this candidate might be a worthy candidate. Then आपको बताना है आप हो कौन, like who you are, who is Shagun. Then what have you done, like some of your achievements or some of your story ki see this is where I'm coming from, ये मेरे achievements हैं, why you, and then a clear call to action कि शगुन कौन है and why does she deserves to work for the whole truth, why does she deserves to work for Yoga Bar. So why you, why me, and then like why me, why you, why us. So why Shagun, why the XYZ company, and why both of us will be a good fit together. And then a very clear call to action ki you know, I love let's catch up or matlab this is where you can contact me and give me some project, I'll give some wild ideas on it. So something like that, you can have your own call to action. So अगर हम लोग hook की बात करें, so you can, this could be a potential hook. I can help you craft basis what your story is. But if someone is applying for social media manager or social media में अगर executive role पे आप apply करो, so I help a brand get 10,000 views before turning 21. Like this could be a stop. या फिर I grew my own Instagram channel to 30k followers, 100k followers. So this could be a stopping hook. अब इसके बाद क्या है यार, अगर आप खुद को पिच नहीं करना चाहते, what you can do is आप एक शॉर्ट एड बना सकते हो फॉर द प्रोडक्ट. अगर मैं लेट्स से मुझे .in में अप्लाई करना है फॉर अ ब्रांड मैनेजर रोल या फॉर अ मार्केटिंग रोल या सोशल मीडिया रोल में मेरे को अप्लाई करना है, एंड आई नो दैट आई एम क्रिएटिव एंड आई एम द राइट फिट फॉर दैट रोल, सो व्हाट विल आई डू. आजकल AI भी इतना एडवांस हो गया कि यू कैन डू एनीथिंग. सो आई जस्ट पिक अप देयर प्रोडक्ट, आई सी व्हाट दे आर डूइंग, लाइक सोशल मीडिया पे क्या क्या कर रहे हैं. I'll come up with my own campaign idea and I'll execute it for them and I'll send it to them. See, this is something which I feel has the potential to go viral and get you, it can benefit the brand in XYZ ways, and just make a video and send it to them, right? Just send it to the marketing manager, send it to like the concerned person right there. I think he or she will definitely appreciate it. Then you can suggest any strategy for the brand that they can currently leverage. आप उनका competitor analysis कर सकते हो. So let's say मुझे कोई कंपनी रीच आउट करनी है, लेट अस से कि PNG को मुझे रीच आउट करना है, या फिर आई वांट टू रीच आउट एनी स्टार्टअप ऑल्सो. सो एंड व्हाट विल आई डू, आई विल स्टडी देयर कंपेटिटर्स, आई विल डू अ कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, आई विल स्टडी द different strategies that their competition is following, and I'll tell them, see, this is where you are missing out on and there's a huge potential here. So I'll just suggest any strategy in that video. Hey, hey XYZ brand, you are doing this wrong. Hey XYZ brand, you need to catch up on this.
सो दिस इज समथिंग विच यू कैन क्रिएट फॉर योर ड्रीम ब्रांड. चाहे आप प्रोडक्ट में हो तो आप प्रोडक्ट इनोवेशन बता सकते हो, UX UI में हो तो आप यू कैन सजेस्ट दोज फीचर इम्प्रूवमेंट्स, एंड वाइस लाइक यू कैन लाइक जो भी आपका रोल है उसके हिसाब से आप इसको पिच कर सकते हो टू द ब्रांड और टू द कंपनी विच एवर यू आर रीचिंग आउट टू. सो इट्स अनदर इंटरेस्टिंग वे टू ग्रैब द आई बॉल्स. Then what is the brand doing wrong? Yeah, I think we have covered this. Ki this, I feel like this could have been done better, and here is my take on it, and here is how I would have executed it. तो ऐसे ऐसे करके यार आप एक resume तो भेजो, but उसके साथ just send a short video which is adding value to the company, and you can reach out to the founders also directly. Just write it on LinkedIn, tag the founder, and you can initiate conversation on social platforms and get noticed. So I think this could again be a very good way of breaking that process कि resume shortlist आएगा नहीं आएगा, ATS cross होगा नहीं होगा, is my resume good enough, how do I reach out? So I think that this is the answer. Just look beyond the boring resume and try to stand out, and I think this is a fairly good way of doing it. Let's go. So I'll give you my example. So मुझे पता था starting से that I am a creative person, and like I am a creative person and I want to land marketing jobs or let's say brand manager role. And मुझे starting से ही I knew कि कुछ अलग करना पड़ेगा, I need to stand out from the crowd. So मैंने अपना एक social media page बनाया where I started decoding different brands and their case studies. Let's say I did on Blue Smart, I did on Blue Tokai, I did on 100 other brands out there. So I started putting out content on social media, and I just started connecting with people, and I shared the link of my Instagram with them, and they really appreciated it. So like I tagged founder of Blue Smart in my reel. He like we got in touch. He appreciated my work. I got in touch with the founder of PSafe and other founders. Like I connected with a lot of founders through this way. So जिस भी company पे आप reel बना रहे हो, and the best way is जैसे अभी Shark Tank चल रहा है. So whatever companies are there, whatever companies are coming, pitching, getting funding, I think it's a good way of tapping. And you can make a reel on that particular startup. You can tag the founder, and I think they'll really appreciate it. So this is one thing. You can check out my Instagram page with Scale with Shagun, and to get more idea of what kind of videos I created. So videos again are interesting way. अब डेक जो है, डेक इज आर मॉडर्न रेज्यूमे. सो ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू कि यार एक रेज्यूमे के अलावा क्या क्या किया जा सकता है टू बैग आर ड्रीम रोल. अगर मुझे कोई पैकेज फोड़ना है अच्छा, तो रेज्यूमे के बलबूते मुश्किल होगा थोड़ा. सो दीज आर ऑल दी ऑल्टरनेटिव्स दैट वी कैन टेक टू एक्चुअली गेट वॉट वी वॉन्ट, एंड these have worked for me in the past. I'll again brief you towards the end. सो डेक है हमारी यार मॉडर्न रिज्यूमे. अब डेक क्या होती है? so, यार डेक होता है जो हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं ना. इमेजिन, थिंक ऑफ इट लाइक अ प्रेजेंटेशन ऑन द कंपनी. सो इट इज़ विजुअल, इट इज़ इम्पैक्टफुल एंड स्टोरी. सो आप विजुअल एंड स्टोरी टेलिंग का एक फ्यूजन बनाते हो टू पिच हु यू आर एंड वाई यू डिजर्व टू बी देयर इन योर फेवरेट ब्रांड. सो मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ एक बार. आई विल शो यू सम सैम्पल डेक्स ऑल्सो कि कौन से डेक्स मैंने यूज़ करे थे टू रीच आउट टू कंपनीज लाइक पीडीलाइट, चायोज. बट अभी पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. सो स्ट्रक्चर में आप एक कवर स्लाइड डालोगे, आप एक अपना नाम डालोगे, टैगलाइन डालोगे, नीश डालोगे, एंड कुछ अपने बारे में क्वर्की एलिमेंट डालोगे. लेट्स से मार्केटिंग दैट हिट्स द हार्ट. इट कुड बी योर कॉल आउट, इट कुड बी टैगलाइन. देन मतलब मेरा जो मेन डोमेन था which was I was targeting marketing roles only, so a lot of my examples are catered to that only, but same applies across domain. अगर आपका data role आप tap करना चाह रहे हो, you can use a lot of data in your slides. You can use data analysis to provide whatever you have to offer for the company. अगर आप product के बारे में study कर रहे हो तो आप उस company का product study कर सकते हो, उसके बारे में recommendations दे सकते हो. अगर आप graphic designer हो तो आप उस company के किसी product का एक graphic like campaign design कर सकते हो. You can show it to them. So similarly, whatever roles you have, you can adjust. I'm just giving you frameworks which you can apply to your respective domains. So let's begin. And this is also a sample structure. You can use your own structure, but in order to make your life easy, I am sharing it with you. So you can mention about me 3 bullet points or visual journey of who you are, where are you coming from,
प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन, इंटर्नशिप्स, क्वांटिफिएबल. एंड इन डेक्स में ना हमेशा कोशिश करना जो भी इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया है उसको आप क्वांटिफाई कर सको. लेट्स से generated a revenue of X lakhs or X crores, or scaled the company to 2x, like drove conversions from X to 3x, so something like this. मिनी कैंपेन आइडिया दे सकते हो आप कंपनी के लिए कि हे चायोस, दिस इज लाइक आई हैव बीन अ रेगुलर कस्टमर ऑफ यू एंड आई फील दिस इज वन कैंपेन विच यू कैन एग्जीक्यूट एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ड्राइव बिजनेस एंड ड्राइव योर टॉप लाइन. Then mini campaign, you can add some social proof, you can have contact info, and you can have a rare insight. What I would do in 30 days. So अगर आप मुझे hire करते हो, what I would do in the first 30 days. So this is something, जब आप इतना करते हो ना, you automatically stand out from 2000 other applications which the company or the manager has received. क्योंकि ये शो करता है, बिकॉज हम जनरली कहते हैं यार रेज्यूमे के साथ कवर लेटर भेज दो, बट कवर लेटर भी उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा जितना आपका एक डेक या आपकी एक वीडियो या आपका एक कैंपेन डिजाइन फॉर द कंपनी होगा, बिकॉज इट इंस्टेंटली शोज यू दैट यू हैव अ वेरी गुड इंटेंट, यू हैव अ वेरी हाई इंटेंट ऑफ वर्किंग इन दैट कंपनी एंड इट शोज वॉट एवर स्किल्स. मतलब बोल के शायद आप उतना अच्छा एक्सप्रेस ना कर पाओ जितना आप अपने काम के थ्रू डिलीवर कर सकते हो, एंड वही हमने यहाँ पे करना है. तो मैं आपको अपनी लाइक आई विल नॉट शो यू द एंटायर डेक, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एंड आई कैन शेयर इट विद यू, बट हियर इज अ ग्लिम्स ऑफ वॉट आई डिड. सो ये मेरा स्टार्टिंग पेज है. कि वॉट मेक्स मी हु आई एम and why I am the Shagun Pidilite deserves. So Pidilite Fevicol की parent company है. So मतलब I wanted to get into this company and I just made a deck for them. So मैंने first page में ये देखा what makes me who I am and why I am the Shagun Pidilite deserves. So ये दो लाइन पढ़ के I think it's very clear कि मैं express क्या करना चाह रही हूँ इस deck के through. फिर इसके बाद मैंने अपने बारे में बताया थोड़ा सा, एक आई एडेड सम क्वर्की एलिमेंट्स दैट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम. आई हैव ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन एक्सेस माई डेक. देन इसके बाद मैंने अपना बताया एट मामाअर्थ आई डिलीवर्ड इम्पैक्ट थ्रू 4 buckets बनाई विच आई फील वर रेलेवेंट टू द रोल दैट आई वॉज गोइंग टू अप्लाई फॉर. सो विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड मार्केटिंग, कस्टमर एंगेजमेंट, स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस. एंड मैंने क्वांटिफाई किया 500 SKUs, 10%, 30%, 360 hours, 7+ teams, 100+ targets. So आप देख सकते हो लॉट ऑफ नंबर्स आर देयर. सो इसको हम बोलते हैं क्वांटिफिएबल इम्पैक्ट शो करना. एंड ये आपको करना पड़ेगा. लाइक यू कांट पुट इन जेनरिक पॉइंटर्स इन योर डेक, बिकॉज आपकी डेक में दम होना चाहिए कि यार दिस फर्स्ट ऑफ ऑल ये बंदा या बंदी ने ऑलरेडी मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया है बाय डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, बाय गिविंग मी समथिंग एक्स्ट्रा देन द ट्रेडिशनल रेज्यूमे, एंड नाउ दीज पॉइंटर्स आर डैम सॉलिड, आई नीड टू इंटरव्यू हर. सो ये फीलिंग आनी चाहिए आपकी डेक देख के. इसके बाद मैंने पिडिलाइट को एक कैंपेन सजेशन, लाइक सम ऑफ द स्लाइड्स आर मिसिंग. इसके बाद मैंने क्या था, पिडिलाइट को एक कैंपेन एग्जीक्यूशन आइडिया दिया था कि यार सबसे पहले मैंने उनकी कैंपेन स्टडी करी जो भी उन्होंने पिछले 10-15 साल में लगाई हैं. आई गेव अ शॉर्ट एनालिसिस ऑफ ऑल दोज कैंपेन्स एंड मैंने बोला कि फ्रॉम द पास्ट लाइक सम ऑफ द कैंपेन्स ऑफ पिडिलाइट विच आई अडोर एंड हियर इज द वन दैट आई क्रिएटेड. तो वहाँ पे मैंने अपनी क्रिएटिविटी यूज करी एंड आई पिच्ड अ कैंपेन. यार पिडिलाइट, सी दिस इज one ad or one campaign that you can do with Fevicol and with like other products that you have. So ऐसे आपको कुछ deliver करना पड़ेगा to the brand, to the company. And then finally मतलब और भी बहुत सारे slides थे. I had a like 13-pager deck, but these are some of the glimpses. Then what I bring to the table. Hungry for creating an impact, fresh perspectives, building for the future. Then इसके बाद मेरा एक और analysis था on the industry in general. Then I had my journey at Masters Union कि मैंने how I learned beyond the traditional classroom and how I built my own venture. So there was a story of that, how I secured a pre-seed fund for my startup. It was there. So अपने achievements मैंने list करे deck में, कंपनी के लिए वैल्यू ऐड करी एंड अपने आप को प्रूफ किया दैट आई एम अ वर्दी कैंडिडेट एंड इट्स इनफ टू गेट यू एन इंटरव्यू कॉल. सो दिस वॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ वॉट एवर वी हैव डिस्कस टिल नाउ. सो अभी तक अगर आप देखोगे तो हमने 2-3 तरीके डिस्कस कर लिए हैं. लेट्स जस्ट डू अ मिड वीडियो रिकैप. सो यू हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. एक है आप अपने रेज्यूमे प्रिंट करा के भेज सकते हो टू द हायरिंग मैनेजर. वो डायरेक्टली आपका रेज्यूमे लैंड करेगा एट द राइट प्लेस एंड इफ अगर उसमें दम है,
you will definitely get a call, guys. Then we studied how to leverage the networking events. उसके बाद हमने देखा कि यार वीडियोस बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट, डेटा, वट एवर डोमेन यू आर कमिंग फ्रॉम, इसको आपको लेवरेज करना चाहिए, एक अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाओ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विल टॉक अबाउट इट इन माई अपकमिंग वीडियोज. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट डेक, कि एक डेक कितना इंपॉर्टेंट होता है टू लैंड यू एट द राइट प्लेस. सो आई कैन हेल्प यू क्रिएट योर डेक ऑल्सो. सी, ये मैंने आपको थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करी है कि आप और क्या क्या कर सकते हो. बट इफ यू नीड एनी हेल्प इन क्रिएटिंग दैट डेक, क्रैकिंग दोज परफेक्ट लाइन्स, then you can connect with me. You can register on the form given in the description box, and we can get in touch, we can discuss. So ये बस glimpse है इसके, like काफ़ी अच्छे अच्छे decks भी मैंने बनाई हुई हैं. So you can join the Telegram group and access those. इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? सो हमें करना है स्टैंड आउट, एंड हियर इज वन मोर वे विच इज केस स्टडी. सो केस स्टडी एक प्रूफ है कि यार आप सिर्फ बातें नहीं करते हो, आप एग्जीक्यूट भी करते हो. आपको एनालिसिस करना आता है, आपको कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग करनी आती है, आप कंपनी को अच्छे से समझते हो, यू रेजोनेट विद द कंपनी, यू लव द कंपनी. ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज क्वेश्चंस गेट आंसर्ड बाय अ केस स्टडी यू डू ऑन अ ब्रांड. सो लेट्स से आपको करीम में जाना है, या यू वांट टू गेट अ जॉब एट नून, या यू वांट टू टारगेट मेक माई ट्रिप, या MMT, फ्लिपकार्ट, वॉट एवर ऑर्गेनाइजेशन यू आर एमिंग फॉर, आप एक केस स्टडी कर सकते हो. केस स्टडी में आप कोई भी एक प्रॉब्लम ले सकते हो या कोई एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हो विच द ब्रांड कैन लेवरेज राइट नाउ. जैसे फ्लिपकार्ट के लिए, लाइक इट्स एंटरिंग फ्लिपकार्ट क्विक कॉमर्स विद इट्स फ्लिपकार्ट मिनट्स. सो इफ यू हैव एनी वैल्यूएबल सजेशन, you can make an entire case study on that problem and you can pitch it to Flipkart. You can pitch it to the hiring manager. You can pitch it to, अगर आप data team में जा रहे वाले हो तो data head, CMO, whatever, whosoever you want to pitch it to. So सबसे पहले आप एक context setting करोगे. Again, this is a structure which I am providing you. You can definitely use your own framework, but this is just to guide you कि आप एक case study analysis कैसे करोगे. सो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि यार दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है विच यू आर नॉट टैपिंग, एनी वाइट स्पेस. सो अगर आपको कोई वाइट स्पेस दिख रहा है उस कैटेगरी में कि यार दिस इज समथिंग विच कैन, लाइक मार्केट साइज बड़ा है, हम नहीं खेल रहे, कैटेगरी बड़ी हम नहीं खेल रहे, सो ये सारे इनसाइट्स आप दे सकते हो. गोल क्या है, आप गोल मेंशन करोगे, व्हाट डू यू वांट टू अचीव. फिर आप अप्रोच बताओगे कि यार सी दिस इज द एग्जीक्यूशन प्रोसेस. देन आप रिजल्ट्स बताओगे कि यार आई विल बी मॉनिटरिंग दीज की मेट्रिक्स, ये मेरी लर्निंग्स होगी. एंड देन रिफ्लेक्शन, कुछ भी आप ऐसे लाइक बना सकते हो अपना एक केस एनालिसिस. आई वुड हाईली रेकमेंड अगर आप डेटा रोल्स के लिए जा रहे हो या फिर आप प्रोडक्ट मैनेजर रोल के लिए जा रहे हो, तो आप उस प्रोडक्ट पे केस स्टडी कर सकते हो यार. यू कैन एनालाइज एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. अगर आपको पेटीएम में जाना है या रेजर पे में जाना है, you can do a very thorough case analysis and you can mail it to the head of department, to the CMO, और जो भी chief operation officer है या जो data lead कर रहे हैं वहाँ पे. So you can reach out to them and this will make sure that it gets converted. अब आ जाते हैं और फन पार्ट पे गाइस. हर एक जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, मैं बस आपको एक फ्रेमवर्क, लाइक कुछ आइडिया प्रोवाइड कर रही हूँ कि यार ये ऐसे ऐसे आप रीच आउट कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, फन पार्ट इज कमिंग राइट नाउ, जो मेरे को सबसे कूल लगता है. सो लेट्स बिगिन विद द क्रिएटिव रेज्यूमे आइडियाज. यार आपका रेज्यूमे भी क्रिएटिव हो सकता है, आप क्रिएटिव हो, दैट्स गुड, बट योर रेज्यूमे ऑल्सो हैज टू बी क्रिएटिव एंड इट हैज टू स्पीक ऑफ योर क्रिएटिविटी. सो जैसे लेट्स स्टडी द एग्जाम्पल ऑफ नेटफ्लिक्स. अगर मुझे नेटफ्लिक्स में जॉब चाहिए, मैं क्या करूँगी? नॉर्मल रेज्यूमे भेजूंगी, ओपन हो मेल, ना ओपन हो, मैनेजर को पसंद आए ना पसंद आए, आप वर्दी कैंडिडेट लगो ना लगो, कोई बात की गारंटी नहीं है. पर अगर आपने एक नेटफ्लिक्स होम पेज स्टाइल रेज्यूमे बना दिया, एक सीरीज डॉक्यूमेंट्री बना दी अपने ऊपर और उसका टाइटल रख दिया लेट्स से वॉच माय करियर जर्नी, या कुछ ऐसे बहुत ही क्वर्की सी कॉपी आपने लिख दी, या वेरी अटेंटिव, मतलब कुछ भी आपने अच्छा सा लिख दिया, एंड यू प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ नेटफ्लिक्स रेज्यूमे, chances are you will get a call, you will get a direct call. It has worked, trust me guys, it has worked, and it always works. So I'll just show you a sample जो मैंने अपने लिए बनाया, मतलब I've just created it rough. So here you can see on my screen,
I have given it the interface, so this is how you will approach it. Okay, I'm just giving you an idea, execution आपको ही करना है. So this is how the interface will look like for your resume. ये आपका resume है, imagine it. Now compare it with your resume, whatever you have. So you are mentioning your series, you are mentioning your name here. आप अपनी strength बता रहे हो कि यार brand strategy मेरी strength है. I am trending on #1 for brand strategy. Then I drive brand growth through sharp positioning, impactful campaigns, and cross-channel execution. I'm currently focused on scaling presence across quick commerce and GT. एक बहुत ही short and crisp proposition आपने अपना लिख दिया यहाँ पे. And you can mention play, you can mention more info, and यहाँ पे भी और ज़्यादा आप कर सकते हो. Episode 1. You can start with your career journey, how you start. Episode 2. आप मेंशन कर सकते हो, वहाँ पे आप अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हो या क्या आपने सीखा उसके बारे में बता सकते हो. एपिसोड 3 में आप वो बता सकते हो, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल. एपिसोड 4 में आप बता सकते हो, यार देखो मुझे इसलिए तुम्हारी कंपनी में काम करना है, मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद है, मैं ये कर सकता हूँ, दीज आर माई स्किल्स स्ट्रेंथ्स, लेट्स कनेक्ट. सो दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ अप्रोचिंग the companies which are your dream shots, which are your dream companies, and they don't come to your campus for hiring. Company नहीं आ रही तो आप company तक जा सकते हो. And my friend, this is the right way of approaching. Let's move on. Let's say अगर Spotify में आप एक playlist resume बना सकते हो. So Spotify में आप 4-5 slides बना सकते हो कि why me, why Spotify, why us, and what I would do, what I would do if I get selected for this position. तो ऐसा करके आप बना सकते हो. ना थिंक ऑफ Zepto एंड Blinkit. अगर आपको Zepto और Blinkit में लाइक आई टेल यू, हमारे कैंपस पे आई थी Blinkit हायरिंग के लिए एंड सबकी लाइक शॉर्टलिस्ट आ गई. देयर वाज अ गाय जिसकी शॉर्टलिस्ट नहीं आई थी. उस बंदे ने क्या किया, Blinkit के लिए एक डेक बना के Blinkit को भेज दी और रात में उसकी शॉर्टलिस्ट आ गई कि यार यू आर हैविंग एन इंटरव्यू टुमारो. सो दिस इज द power of sending a personalized deck, power of sending your personalized pitch to the company. So इतना difference create कर देती है. उस बंदे को normal resume के basis पे shortlist नहीं आया, but when he sent a deck to the company, he received a call that we are interviewing this guy tomorrow. So this is the power. So Zepto पे आप क्या कर सकते हो, Zepto आप खोलते हो, उसका पूरा इंटरफेस होता है. आप Zepto के इंटरफेस के फॉर्मेट में अपने आप को पिच कर सकते हो. राइट, यू कैन मेंशन योर नेम देयर. आप प्रोडक्ट्स में अपनी स्किल्स डाल सकते हो, कैटेगरीज में अपने अचीवमेंट्स, कुछ भी करके आप क्रिएटिव सा कुछ भी कर सकते हो. सो आई हैव अ सैम्पल रेज्यूमे फॉर दिस ऑल्सो. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक टू गेट द एक्सेस फॉर इट. एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ये वीडियो, whosoever is planning to apply to companies off campus या कोई जॉब ढूंढ रहे हैं अभी. एंड आई एम श्योर दैट these are the approaches which not many people talk about, and all of them are really impactful, and just try them out. So let's go. फिर आप Tinder resume भी बना सकते हो, swipe right on my skills. ऐसे मतलब हेडिंग्स मैंने हर कंपनी के लिए क्रैक कर ली थी कि यार अगर मैं फेविकॉल को जो पिच कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने चायोस को एक शगुन्स मेन्यू करके भेजा था जहाँ पे मैंने अपने स्ट्रैटेजी शेक्स और पता नहीं कुछ लाइक काफ़ी कुछ क्रिएटिव किया था. जो डेक मैंने पिडीलाइट को भेजी वर्सेस जो डेक मैंने चायोस को भेजी, इट वाज वेरी डिफरेंट, बहुत ही कस्टमाइज थी. कुछ फॉर्मेट्स थे जो कि मैंने सेम रखे थे अक्रॉस ऑल द डेक्स, बट देर आर सम चेंजेस जो आपको कंपनी लेवल पे करने पड़ेंगे. सो दैट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, बट आई थिंक अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको अगर कुछ बड़ा पाना है, देन यू हैव टू मेक दिस एक्स्ट्रा एफर्ट. देन लिंक्डइन पे भी आप अपने कराउजल्स डाल सकते हो विच विल एक्ट एज योर मिनी पोर्टफोलियो. लिंक्डइन पे यार, एंड प्रो टिप इसकी यही है कि जो भी लिंक्डइन का फीचर्ड सेक्शन है, प्लीज़ यूज़ इट वेरी केयरफुली. आजकल रिक्रूटर्स आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल मांगते हैं. मतलब जो भी आप देखोगे, ब्लिंकिट हायरिंग कर रही है या कोई प्रोडक्ट कंपनी हायर कर रही है, सो या मार्केटिंग के लिए जो कंपनीज हायर कर रही हैं, दे यूजुअली जब भी जो फिलिंग वो फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का URL भी मांगा जाता है. सो योर लिंक्डइन एक्ट्स एज योर मॉडर्न रेज्यूमे, एंड वो जो स्क्रूटनी होती है आपके लिंक्डइन की, तो वहाँ पे अगर आपने अच्छी कुछ कैंपेन एनालिसिस किया हुआ है या फिर आपने डेटा हैवी इनसाइट्स प्रेजेंट करे हुए हैं, आई थिंक दैट ऑलवेज वर्क्स इन योर फेवर.
सो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. सो यूज योर लिंक्डइन केयरफुली. अगर आप सर्च के लिए, अगर आप जॉब सर्च में हो या यू आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी अदर कॉलेज, यू आर गोइंग टू ग्रेजुएट, यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स, अपने लिंक्डइन को स्ट्रेंथन करना स्टार्ट कर दो. स्टार्ट पुटिंग आउट वैल्यूएबल कंटेंट, स्टार्ट क्रिएटिंग एंगेजमेंट, अपना नेटवर्क बढ़ाओ, कनेक्शंस बढ़ाओ. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल. सो ये रेज्यूमे हमने बात कर ली. सो ये थे कुछ टैक्टिक्स कि यार रेज्यूमे के अलावा दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई कैन पुश एंड गेट एन इंटरव्यू कॉल. एंड ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, दे वर्क बेटर देन अ नॉर्मल रेज्यूमे. अब आप बोलोगे यार डेक तो हमने बना ली, बट कुछ कुछ तरीके हमने डिस्कस करें, बट डू कोल्ड डीएम्स वर्क? ये मेरी सबसे बड़ी वरी है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिंक्डइन पे मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा, मेल कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा, टेक्स्ट कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा. सो फ्रेंड्स, कोल्ड डीएम्स वर्क एंड सो डू कोल्ड ईमेल्स. बस ये है कि आप गलत तरीके से कर रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग इट रॉन्ग. सो टुडे आई विल टेल यू कि what is the best approach to send your mails. मैं अपना जो मेल है उसका भी डीप डाइव एनालिसिस करूंगी कि मैंने किस तरह के मेल्स भेजे हैं, किस पे मुझे कन्वर्ट्स आए, किस पे कन्वर्ट्स नहीं आए. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट विथ कोल्ड ईमेल हैक्स. यार ये हैक आपको कोई नहीं बताएगा, सो प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली. सो time it based on their age and habits. So by there I mean founders. ये जो हमारे तरीके होते हैं मतलब रीच आउट करने के, बहुत डिफर करेगा अगर आप अगर आप स्टार्टअप को रीच आउट कर रहे हो. एक स्टार्टअप है जिसका ओल्ड फाउंडर है और एक स्टार्टअप है जिसका थोड़ा यंग फाउंडर है. दोनों के काम करने का तरीका बहुत अलग होता है, बट एक जनरल पैटर्न क्या है, अगर यंग फाउंडर है, you can mail it to them at 10 p.m. It would be the right time to send your mail. I think like optimized time to send your mail. Because they are night owls, they are often grinding late and they check their emails before bed. This is a general behavior. Versus अगर कोई old founder है, mail it to them early in the morning because they start their day early and there are high chances कि वो morning में अपने सारी emails review करेंगे. So they are early risers, they often review their emails with their morning coffee. So this is a very clear difference. You can try it out in your case also. अगर कोई young founder है, वो थोड़ा they are night owls, वो थोड़ा late तक जगते हैं, so try to send them email at around 9-10 p.m. और अगर कोई early founders है, send them email at the early morning like 6 a.m. 7 a.m. So that's the time वो they have started their day already. So this is one hack to note down. Then we have first line should be your personal hook. फर्स्ट लाइन शुड बी देयर पर्सनल हुक. अगर वही अरे हाय आई एम कमिंग फ्रॉम दिस कॉलेज, आई हैव स्टडीड दिस, माई स्किल्स आर दिस एंड आई हैव डन दिस, प्लीज हायर मी, देन नोबडी इज गोइंग टू गिव अ डैम अबाउट योर ईमेल. बट अगर आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लिखते हो लाइक समथिंग that the founder has tweeted or posted on LinkedIn recently, कुछ प्रॉब्लम उन्होंने रेज करा है, कोई कंसर्न रेज करा है, and you are adding on to that. So just start by adding on to that concern and then slightly pitch yourself. Then a recent product launch, funding round या hiring update कोई है, so उससे आप अपना मेल स्टार्ट कर सकते हो to set the context. Then you can have shared connections कि saw you are an alum at this, love what you are doing, and उसके बाद आप अपना pitch start करोगे. So these are some basic hygiene checks that you have to do. Then keep it short and value driven. मतलब स्टार्टिंग में 3 to 5 लाइन स्टार्टिंग में जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट एंड उसके बाद जस्ट कम डायरेक्टली टू व्हाट यू वांट फ्रॉम द फाउंडर. एंड दिस इज बाय फार, ओके आई जस्ट हाईलाइट इट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन परफेक्टिंग द सब्जेक्ट लाइन. अगर आपका ईमेल खुलेगा तो आपकी सब्जेक्ट लाइन के बेसिस पे खुलेगा. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सब्जेक्ट लाइन परफेक्ट कर लो या फिर उसको कुछ इतना लाइक मेक इट समथिंग विच बिकम्स एन अटेंशन ग्रैबर. सो लेट्स, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी लाइन्स मेरे लिए काम करी. सो कोल्ड डीएम, वंस अगेन आई आइटरेट दिस, कोल्ड डीएम्स वर्क, yes they do, so does cold emails, and you are just doing it wrong. So here is what worked for me, let's check it out. So these are some of the like कुछ examples हैं, मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रही हूँ. These are some of the many examples that we have. So मुझे Spotify को reach out करना था, I texted a guy, I got a reward from him. मुझे Lotus में reach out करना था because skincare fanatics, skincare enthusiast हूँ मैं, so I was targeting a lot of skincare companies. So I texted someone from
Lotus, and she sent me like, send your CV with me, I'll forward it to the HR team, I'll forward it to the concerned person. Then मुझे Forest Essentials, this is one of the brands which I love, and इसमें I wanted to work for it. Unfortunately नहीं हो पाया, but I got connected with the person there and she forwarded my resume to the right person. So this, like, these tricks work. Then someone from Himalaya Wellness Company also. So you can see that ये सारी छोटी companies नहीं है, बड़ी companies है हमारी, Spotify, Lotus, Forest Essentials and Himalaya. If I am able to crack those companies, you can also very easily. बस मेरे लिए जो वर्क करा था वो था these different tactics. And I was almost a fresher with just 1 year of experience. It was very difficult for me to stand out because जो postings होती थी, they were looking for 3 year plus experience, 5 year plus experience. But this is how you create the difference. This is how you show you are different. You are willing to learn, and you have that spark. You have that willingness to work, to continue, and to excel in whatever you'll be offered. So ये कुछ एक trailer था. Let's move forward. So this is the exact resume which I wrote. So let's say, अच्छा sorry, ये मेरा forward mail है. हाँ मैं आपको, oh okay, sorry. So this I am showing you that the role that I converted. Hi Shagun, thank you so much for your email. Due to the high number of applications, it's taking more time to than usual to complete the screening process. We have shortlisted your profile for a virtual interview. So I'll tell you, this role, they had mentioned that they need people with work experience. But जो मैंने deck बना के भेजी थी वो इतनी, like, it was good, it worked for me, and I got a call from that company. So हो सकता है guys, you can definitely do it. Then Nykaa also one of the companies which I love. So इसका भी मैं करना चाहती थी. I sent a deck, मैंने बहुत customized deck बनाई Nykaa के लिए, resume भेजा, and then I got a reply from the HR कि thank you so much for showing interest in joining Nykaa. Just share these details with us, and then we had an interview. So this is how what is working. So आप देख रहे हो मेरा मेजर टारगेट था स्किन केयर कंपनी, नाइका, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, लोटस, इन सब से आई कनेक्टेड, आई गॉट अ कॉल. देन आई मेड अ रील ऑन ब्लू स्मार्ट, आई टैग द फाउंडर ऑफ ब्लू स्मार्ट, पी से फाउंडर के साथ थोड़ी इंटरेक्शन हुई, एंड आप देख सकते हो स्पॉटिफाई से मिला, हिमालय वेलनेस कंपनी से मिला. सो कन्वर्ट्स आए बिकॉज I put in that extra effort to show कि यार I am interested, I'm really interested. So let's go, let's break down my cold email. मेरा कोल्ड ईमेल, अब देखो मैंने बहुत सारी सब्जेक्ट लाइन्स ट्राई करी, कुछ फेल, कुछ कन्वर्ट हुई, कुछ फेल हुई. एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है मेल ट्रैक, MAILTRACK. सो उसको आप अपने क्रोम एक्सटेंशन से लिंक कर लेना, उससे आपको पता लग जाता है जो मेल आपने भेजा है क्या वो उस कंसर्न पर्सन ने खोल के देखा या नहीं खोल के देखा. सो वहाँ पे जैसे दो ब्लू टिक आ गए, इट मीन्स द मेल वॉज ओपन. यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगल टिक है, इट मीन्स द मेल वॉज नॉट ओपन. सो उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है. एंड आई विल टेल यू, जितना भी जो मैं डेक्स वगैरह भेजती थी, माई ईमेल ओपन रेट वॉज मोर देन 70%. सो आउट ऑफ 10 ईमेल्स, मोर देन 7 ईमेल्स मेरे खुल रहे थे. So this is the magic of deck, this is the magic of video, this is the magic of your personal pitch. So let's see, अब हम लोग break down करते हैं my resume. So this is the subject line that worked for me. So I don't know, मतलब थोड़ी confusing भी हो सकती है, but ये line थी जिसने मुझे maximum opens दिए. So my name is Shagun. So Shagun, not lifafa, but definitely worth opening. Shagun, not lifafa, but definitely worth opening. So this is the line which worked wonders for me surprisingly. मेरे काफ़ी जिस भी ईमेल में मैंने ये लाइन यूज़ करी है ना, वो ईमेल मेरा ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम वो खुले थे. फिर मैंने ब्लिंकिट के लिए कुछ यूज़ की थी, शगुन फॉर ब्लिंकिट, डिलीवर्ड इन 10 minutes, डिड नॉट वर्क. वरुण, यू हैव क्रैक शगुन डील ऑफ द सेंचुरी. सो वो अपने नाम को थोड़ा एम्बेड करने की कोशिश करी थी. सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम in perfecting your subject line also, because वही आपका ईमेल ओपन करवाएगी. सो एक्सपेरिमेंट आउट, टेक हेल्प ऑफ GPT, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो, नाम फिट इन करके देखो अगर वो होता है तो. अदरवाइज एनी अदर वे इन विच यू फील इट कैन कंपेल द फाउंडर टू ओपन द मेल. अब आ जाते हैं मेरे ईमेल पे. सो यार ईमेल बहुत सेकेंडरी चीज़ है, पहले हमने डेक परफेक्ट करनी है, उसके बाद हम मेल पे आएंगे. सो दिस इज अ शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्मेट विच आई फॉलोड. मैं आपको बता देती हूँ, आई गिव अ लाइन बाय लाइन एनालिसिस एंड क्या आपको किस तरह से वो फ्रेम करना है.
So, dear Namami, the name of the recruiter, greetings. I'm Shagun Malik, a PGP in Technology and Business Management and Masters Unit who possesses hands-on experience in branding, marketing, and product launches for leading D2C brands like Mamaearth and the Derma Company. So, देखो मैंने अपनी 2 लाइन में ही एक बहुत अच्छा अपना बैकग्राउंड ब्रीफ दे दिया है कि सी दिस इज व्हाट आई एम डूइंग करंटली, दिस इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, D2C में एक्सपीरियंस है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट लॉन्चेस करे हुए हैं. सो फर्स्ट इनिशियल 2 लाइन्स क्लियर हैं. उसके बाद माई जर्नी इज अ ब्लेंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, creativity and brand building. As a creator, I have achieved 1 million plus impressions on a single post on LinkedIn. By crafting engaging narratives about marketing and branding, I found my startup, leaded end-to-end operations, real customer challenges, sharpening my strategy and problem solving skills. सो यहाँ पे मैंने थोड़ा अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी के बारे में बताया, थोड़ी स्किल्स के बारे में बताया कि देखो मैंने अपना स्टार्टअप किया हुआ है, सो मुझे आता है कि एंड टू एंड ऑपरेशंस कैसे मैनेज करने चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी स्किल्स हैं विच आई ब्रिंग टू द टेबल इन द D2C space. So this is the space in which the brand is operating. So the pitch deck is for Fix Derma, which is in D2C space. I have successfully launched this. I am particularly excited about the opportunity to contribute to Fix Derma's team by 3 pointers. Only 3 pointers you need to describe yourself and to summarize what you bring to the table. कि यार मैं customer centric strategies बना सकती हूँ. I put customers at the center of all I do. I have agile execution. यार प्लानिंग तो सब कर लेते हैं यार, एग्जीक्यूशन करने वाले बंदे चाहिए. मैं लाती हूँ एग्जीक्यूशन की स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट. जो भी मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ उसके थ्रू मैं क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हूँ. लाइक आई विल क्रिएट इम्पैक्ट इन डिलीवरिंग मेजरेबल बिजनेस आउटकम थ्रू क्रिएटिव कैंपेन्स एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस. सो जो भी आपकी 3 कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उनको आप बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो इस मिल में कि यार देखो 3 चीज़ें हैं, ये 3 मैं अच्छे से करूँगी एंड this is where I'm coming from. I look forward to contribute and discuss how I can contribute to your team based on my profile and this. So I'm keen on exploring marketing, branding, interview पे चर्चा to explore this opportunity. I have attached my resume below for consideration and a deck also. Thank you for your time and consideration. I look forward to hearing from you. बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर, कुछ मैंने बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं किया, बट सब्जेक्ट लाइन अच्छी थी. उसके बाद मैंने अपना 2 लाइन में इंट्रोडक्शन दिया, 2 लाइन में बताया कि मैंने क्या क्या करा है, क्या मेरी स्किल्स है. फिर मैंने कॉमनैलिटी इस्टेब्लिश करी कि यार D2C स्पेस में तुम भी हो, मैं भी हूँ, मुझे आता है D2C, मैं कस्टमर एंगेजमेंट कर सकती हूँ, मैं एग्जीक्यूशन कर सकती हूँ. अच्छा, मैं इम्पैक्ट क्रिएट करूँगी, कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करूँगी वो मैंने अपने डेक में बताया. सो वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प ईमेल. शायद अगर मैं सिर्फ ये भेजती तो आई डोंट नो कॉल आता या नहीं आता. But what do we do? This is where the real magic happens. This is the sprinkler. This is the game changer. I attach my deck. I attach my resume. मैंने दोनों चीज़ भेज दी यार. मैंने डेक भी भेजे तुम्हारे लिए और मैंने रेज्यूमे भी बनाया. डेक में मैंने थोड़े उनको स्ट्रैटेजीज भेज दिए, अपने बारे में बता दिया कि यार मामाअर्थ में काम किया है, डर्मा कंपनी में काम किया है, प्रोडक्ट समझती हूँ, एंड वही पूरी जर्नी अपनी मैंने डेक में डिस्क्राइब करी. थोड़ा इनका चैनल स्टडी कर लिया यार, सी इंस्टाग्राम देख लिया, मोटा मोटा देख लिया क्या करना चाह रहे हैं, 2 कैंपेन आइडिया सजेस्ट कर दिए, मेरी डेक तैयार एंड वेरी गुड चांसेस ऑफ कन्वर्शन. सो एक और मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ. सो दिस इज iimjobs.com. सो जिनको नहीं पता है इस पोर्टल के बारे में, सबसे पहले तो यहाँ पे नहीं, everyone can make a profile here. It's not just for the IIM kids. सो मैंने यहाँ से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अप्लाई करी हैं. यहाँ से मैं अपॉर्चुनिटीज़ देखती थी कि यार 2M में ब्रांड मैनेजर हायर कर रहे हैं, तो 2M के लिए पर्सनलाइज डेक बनाई भेज दी. फिक्स डर्मा के लिए हायरिंग हो रही है, डेक बनाई भेज दी. तो ये बहुत अच्छी टैक्टिक है. iimjobs.com पे नॉन IIM स्टूडेंट्स भी प्रोफाइल बना सकते हैं. सो पहली बात तो ये जान लो. उसके बाद देखो, आप ये देख रहे हो एक रीसेंट जॉब पोस्टिंग है, आई थिंक लास्ट वीक की है. सो ब्रांड मैनेजर हायर कर रहे हैं विथ 3 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस. आप यहाँ पे जॉब व्यूज देख रहे हो कितने हैं? 4000 एप्लीकेशन, 4000 व्यूज हैं, 1000 एप्लीकेशन हैं. अब इतने क्राउड में आपको स्टैंड आउट करने में क्या हेल्प करेगी? आपकी डेक, आपका क्रिएटिव रेज्यूमे, आपकी वीडियो पिच, आपके सजेशंस, आपका केस एनालिसिस एंड ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. सो आई थिंक ये आप कर सकते हो एंड यू हैव टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल. अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, यू विल हैव टू कवर दैट एक्स्ट्रा माइल. डू समथिंग विच 1000 अदर एप्लीकेंट्स आर नॉट डूइंग. So, and if you want to access the exact cold emails, messages and decks which are used to get replies, you can register now on the link given in the description box.
And you can connect with me on Telegram also. There I keep on sharing a lot of career related insights and career related opportunities. So see you on my Telegram group. So that's it for today. Let me know in the comment section if you want me to cover any specific part in more detail, or you want more information on that. So drop your views in the comments and share it with your friend who is also on an off-campus job hunt with you. So in our next video, we'll be covering LinkedIn. Till then, see you. Bye bye.